Here is we starting up with the next discussion, that is objective of business. As I have already told you in earlier video, the meaning of objectives are the ends, a point where we reach, that is our objective, the direction in which we move. There is always a point which is the end, that is your objective. These are the goals. ये वो गोल्स होते हैं जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो बनाए जाते हैं कंपनी के एफ़र्ट्स को गाइड करने के लिए कि हमें कौन से एफ़र्ट को कौन से डायरेक्शन में मूव करना है. जो बिजनेसमैन होते हैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ना कि जनरल. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन्स इंक्रीज इन सेल, इट इज़ जनरल ऑब्जेक्टिव. मीन्स हमको सेलिंग बढ़ानी है, लेकिन सेलिंग कितनी बढ़ानी है, दैट इज़ स्पेसिफिक. कुछ मीनिंग होना चाहिए उस सेंटेंस का, उस ऑब्जेक्टिव का. तो दैट इज़ इंक्रीज इन सेल बाय 5% और 10%. सम अमाउंट ऑफ परसेंट इज़ गिवन, दैट इज़ योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. मीन्स द ऑब्जेक्टिव विच गिव्स अस अ मीनिंग. Now, businessmen always have multiple objectives. Not a single objective will work in business. They cannot follow only one objective. All objectives are important, but the most important objective in business is earning profit. It is the most important objective. Earning profit is very important and the prime objective of every business. First objective of every business is earning profit, but it cannot be only the objective. Only earning profit is not enough in business. The objectives in business are classified into 3 categories: economic, social and human. Human objectives are also known as individual objectives. Now we will discuss each of them in detail. First one is economic objective. As we all know that business is an economic activity, so the most important objective of business are economic objectives. These are the most important. In these objectives, 3 important points are included: survival, profit and growth. What is the meaning of survival? The basic purpose of every organization is to survive in this competitive market for a longer period of time. And how we survive in this competitive market? If we are able to cover, what does the profit mean? Profit means what does the revenue means? Revenue means cost plus profit. And if we have to survive in this competitive market, then in a short period of time we have to cover the cost and some more time we take, and then we will able to cover the profit. Then only we will be able to survive for a longer period of time. So the basic purpose of every organization is to survive in this competition market, and we only survive when we will be able to cover the cost of the product. Now second one is profit. I have already told you the most important objective of every organization is earning profit. Not only earning profit, but earning sufficient amount of profit. It is essential for survival and growth both. Profit is essential for survival also and for growth also. And to expand बिजनेस को हमें फैलाने के लिए प्रॉफिट को अर्न करना ज़रूरी होता है. प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड. इट इज़ अ रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क. थर्ड वन इज़ ग्रोथ. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होनी चाहिए. दे मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़. द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? ग्रोथ रेट पे. ग्रोथ रेट मीन्स किसी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी ब्रांचेस खुल गई हैं, नंबर ऑफ़ ब्रांचेस. अगर उसको प्रॉफिट होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, देन ओनली दैट विल बी एबल टू इंक्रीज इट्स ब्रांचेस. नंबर ऑफ़ ब्रांचेस से हम ग्रोथ रेट को मेज़र करते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट से करते हैं. प्रोडक्शन जो है जब ज़्यादा होगा
प्रोडक्शन ज़्यादा कब होगा? जब सेलिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हो गए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हम क्यों रखेंगे? अगर हमारे पास काम होगा, हमको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हम एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिससे हम ग्रोथ रेट को मेज़र कर सकते हैं। दीज ऑल आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ social objectives are for the society, the person who are living our nearby places. सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए होते हैं। कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कस्टमर पैसा हमें देना तब पसंद करेगा जब हम उसको गुड की क्वालिटी देंगे। उस गुड की कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ कस्टमर। कस्टमर प्रेफरेंस उन्हीं प्रोडक्ट्स को देगा जब वो उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई होगा और जो गुड है वो रीज़नेबल प्राइस पे मिलेंगे। न प्राइस ज़्यादा पे न कम पे। कम पे अगर आप दोगे तो उसको लगेगा क्वालिटी अच्छी नहीं है, ज़्यादा पे दोगे तो वो लेना पसंद नहीं करेगा। लेकिन रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए, लेकिन गुड की वैल्यू होनी चाहिए, कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। आज का जो कस्टमर है वो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर है और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि वो पैसा देगा लेकिन उसको पैसे के बदले उसी कीमत की वैल्यू मिलनी चाहिए, उस गुड की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब क्वालिटी हर गुड की अलग अलग रहती है। कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं, कुछ सम गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स लाइक टीवी, कार, स्कूटर। इन सारे गुड्स की वो ड्यूरेबिलिटी देखता है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कितने लंबे समय तक ये चल सकते हैं, वेदर दे आर ड्यूरेबल और नॉट। ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर जो है इन गुड्स को अपने पास ज़्यादा लंबे समय तक रखना चाह रहा है। कुछ गुड्स होते हैं जैसे कुकर हो गया, है ना, गैस सिलेंडर। ये सब गुड्स जब कस्टमर ख़रीदता है तो वो क्या देखता है? सेफ्टी, वेदर दे प्रोवाइड अ सेफ्टी और नॉट। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स हो गई, स्पाइसेस हो गए। इन सारे गुड्स में वो देखता है प्योरिटी। तो हर गुड के अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर गुड की अलग अलग क्वालिटी होती है और डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। अब वो कंज्यूमर पर डिपेंड रहता है कि वो किस गुड को कैसे ख़रीदना चाह रहा है। इस मार्केट में सरवाइव करने के लिए अपनी गुडविल को मेंटेन करके चलने के लिए बिजनेसमैन को हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने चाहिए, राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम, अच्छी क्वालिटी अच्छे प्राइस में। नाउ सेकेंड वन इज़ अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है? ये वो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कस्टमर से ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ़ यू नो अबाउट द ब्लैक मार्केटिंग। गुड के ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा पैसा लेना, ओवर चार्जिंग, होर्डिंग। These are some of the terms which are used in place of unfair trade practices. No society accept these practices. कोई भी सोसाइटी इन प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस प्रैक्टिसेस को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा? हम अपनी रेपुटेशन को लूज़ करेंगे और ये लॉ के अंडर पनिशेबल भी हैं। और पनिशमेंट होता है, वो पनिशमेंट किसके फॉर्म में होता है? या तो फाइन के फॉर्म में या इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में। आपको जेल भी हो सकती है या दोनों भी हो सकते हैं। तो बिजनेसमैन को सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
You know, in today's world, unemployment is a major problem for every society. बिजनेसमैन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करनी चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की उसको दूर करना चाहिए. बिजनेस जो है वो एम्प्लॉय करता है पीपल को, उनकी बेरोज़गारी को दूर करता है, उन्हें अलग अलग तरीके से काम करवाता है बिजनेसमैन. अब अगर हम पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा देंगे तो बिजनेसमैन को हेल्प मिलेगी. वो हेल्प कैसे मिलेगी? बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप्ड, डिसेबल्ड और पुअर पीपल. जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो चल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, किसी के हाथ टेढ़े होते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसे पीपल को जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो कुछ सीखता है. इससे क्या होगा? दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज ऑफ बिजनेसमैन. इससे उसकी इमेज बनेगी, उससे उसकी रेपुटेशन बनेगी. जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टू टाइम सो दैट दे अपडेट देयर नॉलेज. उनकी नॉलेज अपडेट हो और जो जॉब की डिमांड्स हैं वो ख़त्म हो जाए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, फोर्थ इज़ सोशल सर्विस. Social service, we have already know the social programs run by NGOs and government. लार्ज बिजनेसमैन, जो लार्ज बिजनेस हाउसेज होते हैं, दे अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सच एज रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. जो बिग कंपनीज़ होती हैं वो चलाई जाती है NGO के द्वारा. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं फ़ंड अपना. वो फ़ंड किसके फॉर्म में होता है? डोनेशन के फॉर्म में होता है, चैरिटी के फॉर्म में होता है. अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे इन सोशल सर्विस प्रोग्राम्स में, इससे क्या होगा? कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी और कंपनी इस्टेब्लिश क्या करेगी? पब्लिक इमेज को. जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी स्पेंड करती है एक फ़िक्स्ड अमाउंट हर ईयर इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में. तो ऐसे ही जब हम सोसाइटी में जो NGOs हैं उसमें चैरिटी देते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डोनेशंस देते रहेंगे, तो इससे क्या होगा? वी इस्टेब्लिश आवर इमेज. नाउ लास्ट वन इज़ avoidance of pollution. In today's world there are large number of industries, and these industrialization has led to the major problem of pollution. The industries throw their waste in lakes, rivers, which pollutes water. The smoke coming out from industries, the smoke coming out from the chimneys of industries, they pollute the environment. As the businessman has added to the spreading of pollution, so it becomes the moral duty of businessman to come forward and help in solving the problem of pollution. बिजनेसमैन को हमेशा आगे आना चाहिए पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. बिजनेसमैन जो है उसको अडॉप्ट करनी चाहिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स. जब वो किसी गुड का प्रोडक्शन कर रहा है तो वो उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए. उसको वेस्ट मटेरियल लेक्स में, पॉन्ड्स में नहीं फेंकना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो. नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स. वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. Human objectives these are related to the employees who are working in the organization. Employees are the most important asset of any organization. They are the most important persons of any organization. To get maximum from employees से ज़्यादा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको मोटिवेट करना पड़ेगा. और मोटिवेट के लिए बिजनेसमैन जो है उनकी केयर करे. केयर जो है वो कुछ इन सब चीज़ों में हो सकती है. पहले प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, उनकी वर्किंग कंडीशन को अच्छा रखें. सेकेंड वन इज़ पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज. उन्हें सेटिस्फैक्ट्री वेजेस मिले, उनको ऐसा फील ना हो कि उनसे काम करवाया जा रहा है लेकिन उनको वेजेस नहीं दी जा रही हैं, या काम उनसे मैक्सिमम एफ़र्ट दिया जा रहा है उनसे और मिनिमम जो है वो वेजेस दिए जा रहे हैं उसको. तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. देन पर्सनल ग्रोथ उनकी होनी चाहिए. पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी? इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग. उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनकी नॉलेज अपडेट हो. नेक्स्ट वन इज़ पीयर रिकॉग्निशन. इट इज़ अ वर्ड which means
रिलेशन बिटवीन कोवर्कर्स, जो कोवर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे की इतनी तारीफ़ करें कि मतलब अगर दो वर्कर्स हैं वो एक ही लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें ऑकवर्ड फील ना हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है और इसके साथ अच्छा हो रहा है। तो पीयर रिकॉग्निशन